Hello students, how are you all? Now let us start the next chapter of the data structures, that is chapter number 5, linked list. You already know that data structures are of two types. One are linear data structures and other are non-linear data structures. In linear data structures, we have four types of data structures: arrays, stacks, queues and linked list. And we have already discussed these three chapters of arrays, stacks and queues. Now it's a time for fourth and last linear data structure, that is linked list. Now let us start. Let us start with the definition first. The linked list is a linear data structure. We know it is linear and is a linear collection of data items known as nodes. Now what are nodes? Nodes are, you can say, memory blocks या memory cells. इसको आप nodes कहते हो. जब हम सारे memory cells को इकट्ठा जोड़ देते हैं, it becomes a linked list. अभी इतना क्लियर नहीं होगा, हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, एल्गोरिदम्स करेंगे, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, तब आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज लिंक्ड लिस्ट. ओके, ईच नोड ऑफ लिंक्ड लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. अब लिंक्ड लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स. सारे मेमोरी के नोड्स को हम इकट्ठा कर देते हैं, जोड़ देते हैं एंड इट बिकम्स अ लिंक्ड लिस्ट. और जो एक नोड है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. लिंक्ड लिस्ट की नोड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट को हम इंफॉर्मेशन फील्ड कहते हैं एंड सेकेंड पार्ट को हम नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड कहते हैं. अभी आप जस्ट थ्योरी को गो थ्रू हो, जब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगी तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी. So linked list is a collection of nodes and each node is divided into two parts. First part is known as information field. Information field में क्या होता है? Information field में जो हमने डेटा स्टोर करवाना है ना, वो पड़ा होता है. Now linked list is a data structure. Linked list of course डेटा स्टोर कराने के काम आएगी. ठीक है, तो वो जो डेटा होगा वो linked list के नोड के information field में पड़ा होगा. So the first part, known as information field, stores the data of linked list. And the second part is next pointer field. Next pointer field में क्या पड़ा होगा? अगली नोड का एड्रेस पड़ा होगा. It stores, the second part, known as next pointer field, stores the address of next node of linked list. Now let me give you an example of linked list. So this is how linked list looks. See, a linked list is a collection of nodes. We have start node, then we have 1, 2, 3 and 4 nodes. Start node को हम counting नहीं करते. We have 4 nodes in this linked list. Now see, each node is divided into two parts. See, each node is divided into two parts. The first part is known as information field. This is information field of first node. This is information field of second node. This is information field of third node. This is information field of fourth node. And this information fields, they contain data to be stored. जो डेटा हमने स्टोर करवाना है, क्या पड़ा हुआ है information fields में? अगर हम स्टडी करें, GOOD, ये डेटा पड़ा हुआ है. Second part of each node is known as next pointer field. What this part contains? This part contains address of next node. कि पता लग जाए इस नोड के बाद अगली नोड कौन सी है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो एरे होता था, एरे तो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर्ड था. अगर एरे का एक एलिमेंट 100 एड्रेस में स्टोर्ड है 1000 में, तो नेक्स्ट एलिमेंट होगा 1001 में, नेक्स्ट एलिमेंट होगा 1002 में, नेक्स्ट एलिमेंट होगा 1003 में. व्हाई? बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे दे आर स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस. लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है. लिंक लिस्ट में जौन सी लोकेशन खाली मिल जाए उसको लिंक लिस्ट में लगा दो, फिर जौन सी खाली मिल जाए उसको लिंक लिस्ट में लगा दो. यानी जो एड्रेसेस होंगे वो किसी सीक्वेंस में नहीं होंगे. जौन सा एड्रेस फ्री मिलता जाएगा हम उसको लिंक लिस्ट में लगाते जाएंगे और उसमें अपनी इंफॉर्मेशन डालते जाएंगे. सो इसीलिए हमें बताना पड़ता है कि इस नोड के बाद नेक्स्ट नोड कौन सी होगी. नाउ सी, दिस इज द फर्स्ट नोड. इस नोड का एड्रेस सपोज 1011 है मेमोरी एड्रेस. इसके नेक्स्ट नोड कौन सी है? 1001 एड्रेस वाली. तो इसका एड्रेस हमें इसकी पिछली वाले नोड के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में स्पेसिफाई करना पड़ता है. ठीक है, कि फर्स्ट नोड के बाद नेक्स्ट नोड इज एट 1001 लोकेशन हियर. Next node is at 1021 location here.
Next node is at 1211 location here. यहाँ तक clear है that linked list is a collection of nodes and each node is divided into two parts. The first part, which is known as information field, it contains the data to be stored in linked list, and the second part, known as next pointer field, it contains the address of next node of linked list. Fine? Okay. Now, a few more points. The linked list always starts with a special node that is known as start node. ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये नोड टू पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं होती. स्टार्ट नोड में कोई डेटा स्टोर्ड नहीं होता. स्टार्ट नोड इज यूज्ड टू कंटेन एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड कि लिंक लिस्ट कहां से स्टार्ट हो रही है. इट जस्ट कंटेन्स एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड. इट डजंट कंटेन एनी इंफॉर्मेशन. So start is containing 1011. It means the first node of linked list is 1011. Fine. And another point to be noted that the next pointer field of last node contains a special value that is known as null value. What is this null value? क्योंकि ये नोड लास्ट में है, इसके बाद कोई नोड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम किसी नोड का एड्रेस थोड़ी ना देंगे क्योंकि इसके बाद कोई नोड ही नहीं है. What we will put null value here. What is null value? Null value कोई भी invalid address हो सकता है. It could be a negative number, it could be a zero, ठीक है, और it could be any invalid address जो node exist ही नहीं करती वो चीज. तो इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं अपनी डायग्राम्स में. Fine. So there is a special node known as start node which contains address of first node. And then all the nodes are divided into two parts. The first part, known as information field, contains the information to be stored. Next part, known as next pointer field, contains address of next node. And the next pointer field of last node contains a null value. This is clear? Now let us continue with the theory portion. The next pointer field of last node of linked list contains a special value called null value. The null value could either be some negative or invalid address which shows the end of linked list. The linked list always starts with a special node called start node. This node contains address of first node of linked list. Start node does not contain any data. This node is also known as list pointer variable. So start node is also known as list pointer variable. Now next is memory representation of linked list. The same, we did memory representation of stack, we did memory representation of queues, we did memory representation of arrays. Now we are going to do memory representation of linked list. Means how linked list is stored in memory. Linked list memory में कैसे store होती है. So linked list को memory में store करवाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए. हमें सबसे पहले एक वन डायमेंशनल एरे चाहिए, उसका नाम होगा info. एक और वन डायमेंशनल एरे चाहिए, उसका नाम होगा लिंक. इन्फो एरे में लिंक लिस्ट के सारे नोड्स की इंफॉर्मेशन फील्ड स्टोर्ड होंगी. लिंक एरे में लिंक लिस्ट के नोड्स की सारी नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड स्टोर्ड होंगी. सो अ लिंक लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी यूजिंग नंबर 1 two one-dimensional arrays named info and link. Info of k represents information field of node having address k. अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूं, like this is a linked list, मैं कहूं what is info 1001, it is O. What is info 1211, it is D. What is info 1011, it is G. So info of particular address means information present at that address. And link of 1011 means 1001. यानी 1001 के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में क्या स्टोर्ड है, दैट इज लिंक ऑफ 1011. अगर मैं पूछूं लिंक ऑफ 1021 कितना है, तो 1021 नोड पे गए, इसका नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड देखा 1211, ये होगा लिंक ऑफ 1021. अगर मैं पूछूं 1001 का लिंक कितना है, तो 1001 का लिंक है 1021 और 1001 का इन्फो कितना है O. 1011 वाली नोड का इन्फो कितना है G और लिंक कितना है 1001. 1021 वाली नोड का इन्फो कितना है O और लिंक कितना है 1211. 1211 वाली नोड का इन्फो कितना है D और लिंक कितना है null.
सो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इन्फो और लिंक होते क्या हैं. इन्फो ऑफ के रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन फील्ड ऑफ नोड हैविंग एड्रेस के. जो kth नोड है उसका इंफॉर्मेशन फील्ड. एंड लिंक के रिप्रेजेंट्स द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ नोड हैविंग एड्रेस के. और लिंक के में क्या होगा, जो kth नोड है उसका नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड. अभी हम एल्गोरिथम्स करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, तो आपको क्लियर होता जाएगा ये सब. अ स्पेशल, ओके, व्हाट एल्स वी नीड other than these two arrays? We need a special variable named start. एक हमें start variable चाहिए होगा which will store the address of first node of linked list, जिसमें first node of linked list का address stored होगा. And we need a special value that is called null value, और हमें एक null value चाहिए होगी which shows the end of linked list. This null value can either be 0 or negative number or any invalid address. So to represent a linked list in memory, we need number 1, one-dimensional array named info, number 2, one-dimensional array named link, number 3, we need a start variable which stores address of first node of linked list, and we need a null value which indicates end of linked list. So we need these 4 things. Now let us consider an example and understand this topic. Let us consider the following linked list. अब देखो ये लिंक लिस्ट है हमारे पास, मैंने वही लिंक लिस्ट ली है. अब जब आप लिंक लिस्ट बनाओगे तो जरूरी नहीं है आपने मेरे वाले एड्रेसेस लेने हैं. यू कैन टेक एनी एड्रेसेस, बट सीक्वेंस ध्यान रखना है. क्या मतलब, लाइक जो फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा वो स्टार्ट में होना चाहिए सेम. देन जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा वो फर्स्ट नोड की नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में होना चाहिए. नेक्स्ट नोड का एड्रेस उसके पिछली नोड के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में होना चाहिए, तभी चेन बनेगी. और लास्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में नल होना चाहिए. ओके, नाउ लेट अस सपोज वी हैव दिस लिंक लिस्ट. अब इस लिंक लिस्ट को मेमोरी में कैसे स्टोर करवाना है, दिस इज द मेन टॉपिक वी आर स्टडिंग. तो अब देखो मेरी लिंक लिस्ट में मैंने एड्रेसेस 1005 से लेके 1011 तक लिए हैं, ताकि मैं थोड़ी जगह पर एक्सप्लेन कर सकूं. ठीक है, सो मैंने अपने मेमोरी के एड्रेसेस 1004 से लेके 1012 तक बना दिए. एक इससे कम, एक इससे ज्यादा. ठीक है, 1004 से लेके 1012 तक एड्रेसेस बना दिए. ओके, अब जी कहाँ पड़ा हुआ है, जी पड़ा हुआ है 1011 में, मैंने जी लिख दिया. ओ कहाँ पड़ा हुआ है 1005 में, 1005 इधर है, ओ लिख दिया. अगेन नेक्स्ट ओ कहाँ पड़ा हुआ है 1009 में, 1009 में ओ लिख दिया. नेक्स्ट कहाँ पड़ा हुआ है डी 1007 में, तो 1007 में मैंने डी लिख दिया. मैंने इंफॉर्मेशन सारे स्टोर करवा दिए. मैंने स्टार्ट में क्या एड्रेस डाला 1011, और स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है 10011 नोड को. 10011 नोड के नेक्स्ट नोड कौन सी है 1005. तो इसके लिंक में मैंने 1005 स्टोर करवा दिया. क्यों, क्योंकि 1001 नोड के इन्फो में जी है और लिंक में 1005 है. इट मीन्स नेक्स्ट नोड इज 1005. तो यहां से मैंने एरो बना दिया 1005 तक इधर. अब 1005 पर आओ, इसके इन्फो में ओ है और नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड यानी लिंक में 1009 है, यानी अब ये 1009 से कनेक्टेड होगी नोड. सो मैंने इसको 1009 से कनेक्ट कर दिया ऐसे. 1009 नोड के इन्फो में ओ है और उसकी अगली नोड कौन सी है 1007. सो इस नोड को मैंने 1007 नोड से कनेक्ट कर दिया लाइक दिस. एंड इसके इन्फो में डी है और इसके नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड यानी लिंक में नल है. तो ये नोड कहीं से कनेक्टेड नहीं होगी फर्दर, बिकॉज दिस इंडिकेट्स एंड ऑफ लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट खत्म होगी. इसको दोबारा देखो, ध्यान से देखो. सो दिस इज हाउ अ लिंक लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी. नाउ लेट अस डिस्कस द ऑपरेशंस व्हिच आर परफॉर्म्ड ऑन लिंक लिस्ट. आपको याद होगा जब हमने एरेज का चैप्टर किया था तो हमने 6 के 6 ऑपरेशंस किए थे. वी हैव डिस्कस्ड insertion, deletion, traversing, searching, merging and sorting in case of arrays. In case of stacks and queues, we have discussed only 2 operations, insertion and deletion. In linked list, we will discuss 4 operations: traversing, searching, insertion, deletion. हम sorting के algorithm नहीं करेंगे और merging के algorithm नहीं करेंगे linked list के केस में. Fine. Now let us start the algorithms of linked list. Operations performed on linked list. First is algorithm to traverse the elements of linked list.
Traverse, you already know what is traversing. Traversing means assessing or visiting each element of the data structure exactly once. It means linked list के सारे elements को एक एक करके traverse, एक एक करके visit करेंगे, that is traversing. Clear? तो algorithm कैसे लिखते हैं? You already know. First of all, we give the name of the algorithm. We gave the name traverse and then we express the parameters. हमें algorithm में 3 parameters चाहिए होंगे: info, link and start. And you already know we need to then explain those parameters. So info का तो आपको पता है info क्या है, अभी हमने पढ़ा था memory representation में. It is a one-dimensional array which contains information fields of all the nodes of linked list. So linked list के जितने information fields हैं, linked list के nodes की जितने भी information fields हैं, वो सारी info array में stored होती हैं. और link क्या है? Link is also one-dimensional array which stores next pointer fields of all the nodes of linked list. It stores next pointer fields of all the nodes of linked list. This is a one-dimensional array. ये है info of 0, ये है info of 1, info of 2, info of 3, info of 4, info 5, info 6, info 7, info 8, because array है. ये है link 0, link of 1, link of 2, 3, 4, 5, 6, 7, link of 8, like this. So what is link? Link is also one-dimensional array which stores the next pointer fields of all the nodes of linked list. And what is start? It is a variable which stores address of first node of linked list. It stores address of first node of linked list. Fine. So we have explained all the parameters. Now let us start the algorithm. So let me take an example of linked list to explain you the algorithm. Now first of all, let us draw a linked list. Let us learn how to draw a linked list. ठीक है? सो लिंक लिस्ट कैसे ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले हम एक नोड बनाते हैं, दैट इज नोन एज स्टार्ट नोड. दिस इज अ स्टार्ट नोड. उसके बाद जितनी नोड्स लिंक लिस्ट में बनानी है, मैं अपनी लिंक लिस्ट में 4 नोड्स बना रही हूँ. ठीक है, ताकि मैं आपको ट्रावर्सिंग का एल्गोरिदम अच्छे से समझा सकूँ. सो मैंने इक्वल डिस्टेंस छोड़ के I have made 4 boxes to represent 4 nodes. ठीक है, and you know each node is divided into 2 parts. So मैं first information part को थोड़ा छोटा रख रही हूँ, next pointer field part को थोड़ा बड़ा रख रही हूँ, ताकि address completely आ सके. Okay, now addresses देने की turn है. अब एड्रेसेस आप रैंडमली कोई भी दे सकते हो. ठीक है, 4 डिजिट का कोई भी एड्रेस आप दे सकते हो. लाइक मैं दे देती हूँ 1110. दिस इज द फर्स्ट नोड, तो 1110 वाली ही मेरी फर्स्ट नोड होनी चाहिए. नेक्स्ट नोड का एड्रेस मैं दे देती हूँ 1021. ठीक है, सो मुझे 1021 को इधर लिखना पड़ेगा ताकि मैं बता सकूं कि इसके नेक्स्ट नोड 1021 है. फाइन. नेक्स्ट नोड का मैं एड्रेस कुछ भी दे देती हूँ 1007 सपोज मैं दे देती हूँ, तो मुझे यहाँ पर 1007 लिखना पड़ेगा कि इसके नेक्स्ट नोड ये वाली है. इसका एड्रेस मैं कुछ भी दे देती हूँ 1010 दे देती हूँ, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा दैट इसके नेक्स्ट नोड 1010 है. ठीक है, और इसके एंड लास्ट में इसके बाद कोई नोड नहीं है, सो यहाँ पर मैं नल डाल रही हूँ. अब इन नोड्स को कनेक्ट करना है, सो इस तरह एरोस दे के कनेक्ट कर देंगे. सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ अ लिंक लिस्ट. और इसके इन्फॉर्मेशन में मैं कुछ दे रही हूँ लाइक ABCD. मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करवा दी. सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ अ लिंक लिस्ट. फाइन. नाउ लेट अस डिस्कस द एल्गोरिदम ऑफ ट्रावर्सिंग यूजिंग दिस लिंक लिस्ट. So I have written all the steps of traversing algorithm. Now let us see how traversing algorithm it works. Fine. Now first step, इस algorithm को ध्यान से समझो. ये समझ आ जाएगा ना, तो बाकी algorithms फिर धीरे धीरे easy होते जाएंगे. Now see, हमने करना क्या है? ट्रावर्सिंग का मतलब क्या होता है? ट्रावर्सिंग का मतलब होता है कि लिंक लिस्ट या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जिसपे हम ट्रावर्सिंग कर रहे हैं, उसके सारे एलिमेंट्स को एक एक बार रीड करना या प्रिंट करवाना, एक एक बार सारे एलिमेंट्स पर जाना. लिंक लिस्ट पर हम लिंक लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है. फर्स्ट नोड तो यही है ना, ये तो वेरिएबल है जो फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है, बट नोड तो एक्चुअली ये है ना जिसमें डेटा पड़ा हुआ है, फर्स्ट डेटा पड़ा हुआ है. तो पहली नोड पर जाने का क्या तरीका है? पहली नोड पर जाने का तरीका है स्टार्ट से उसका एड्रेस पकड़ लो. फिर नेक्स्ट नोड्स पर जाने का क्या तरीका है? जिस नोड पर है हम उसके लिंक में देख लेते हैं कि अगली नोड कौन सी है, फिर हम अगली नोड पे चले जाएंगे. फिर उसके लिंक पे देख लेते हैं अगली नोड कौन सी है, फिर हम अगली नोड पे चले जाएंगे. लाइक दिस.
सो देखते हैं कैसे चलता है। सबसे पहले हमने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया ptr, इसमें क्या डाल दिया जो स्टार्ट में पड़ा हुआ है। स्टार्ट में क्या पड़ा हुआ है 1110। सो हमने 1110 को ptr में डाल दिया। ptr एक पॉइंटर वेरिएबल है, या कह दो जैसे स्टार्ट वेरिएबल है ना, वैसे ptr भी एक वेरिएबल है जिसमें क्या चला गया जो स्टार्ट में था, क्या था 1110। सो ptr में क्या है 1110। ptr में जौन सी नोड का एड्रेस होगा ना, आप समझो कि ptr ने उस नोड को जैसे पकड़ लिया, उस नोड पे लिंक कर रही है ptr, उस नोड को पॉइंट कर रही है ptr, जिस नोड का एड्रेस ptr में है। ptr में फिलहाल फर्स्ट नोड का एड्रेस है, ठीक है। सो ptr इज पॉइंटिंग टू दैट नोड विच इज हैविंग एड्रेस 1110 विच वॉज प्रेजेंट इन स्टार्ट। सो ptr इसको पॉइंट कर रही है, ठीक है। नाउ रिपीट, इस लूप को रिपीट करना है जब तक ptr की वैल्यू नल नहीं हो जाती। क्या ptr की वैल्यू नल है? नो, ptr की वैल्यू तो 1110 है, इट इज नॉट नल, ठीक है। सो नल नहीं है, इट मीन्स हमारी कंडीशन ये ट्रू है कि ptr नल नहीं है। तो कंट्रोल लूप के अंदर गया, अंदर क्या स्टेप है, प्रिंट इन्फो ऑफ ptr। ptr कितना है, इन्फो ऑफ ptr, ये स्टेप क्या बना, प्रिंट इन्फो ऑफ ptr इज 1110, यानी 1110 का इन्फो प्रिंट करो। 1110 का इन्फो कितना है a, सो क्या प्रिंट होगा, a प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ptr में क्या डाल दो, लिंक ऑफ ptr। अब इसका क्या मतलब, ptr कितना है, ptr है 1110, ठीक है, यही है ना ptr फिलहाल तो 1110। अब लिंक ऑफ 1110 कितना है, लिंक ऑफ 1110 का लिंक कितना है 1021। सो अब ptr में क्या डाल दो 1021। ptr लेफ्ट साइड पर है ना, तो राइट साइड को सॉल्व करके उसकी वैल्यू लेफ्ट साइड में स्टोर होती है, ऐसा ही होता है ना। तो जब हमने राइट साइड को सॉल्व किया, ptr इज 1110, लिंक ऑफ 1110 इज 1021। सो ptr की न्यू वैल्यू कितनी हो गई 1021। अब ptr की वैल्यू 1110 नहीं रही, ptr की न्यू वैल्यू कितनी हो गई 1021। और जैसे ही ptr की वैल्यू 1021 हो गई, ptr ने इस नोड को पकड़ना छोड़ दिया, लिंक करना छोड़ दिया, पॉइंट करना छोड़ दिया, और उस नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया जिसका एड्रेस 1021 है। अब ptr के पास 1021 वाली नोड है, ठीक है। फिर से लूप चली, क्या अब ptr नल नहीं है, क्या ये ट्रू है, यस ptr नल नहीं है, दिस इज ट्रू। कंट्रोल लूप के अंदर गया, अब क्या प्रिंट होगा, इन्फो ऑफ ptr। नाउ द ptr इज 1021। सो व्हाट इज इन्फो ऑफ 1021, इन्फो 1021 इज b, सो b प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब ptr को फिर से हम अपडेट कर रहे हैं। अब ये स्टेप देखो क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू द न्यू वैल्यू ऑफ ptr। ptr कितनी है हमारी, ptr इज 1021, फाइन। सो 1021 का लिंक कितना है, 1021 का लिंक है 1007। सो इसकी वैल्यू कितनी बनी 1007। तो 1007 अब नई ptr की वैल्यू हो जाएगी, यानी अब ptr की वैल्यू 1021 नहीं रही, कितनी हो गई 1007। और जैसे ptr की वैल्यू 1007 हो गई, ptr ने 1007 वाली नोट को पॉइंट करना शुरू कर दिया। आई होप इट इज क्लियर। फिर से लूप चली, अब फिर से कंडीशन ट्रू है कि ptr अभी भी नल के बराबर नहीं है, कंडीशन इज स्टिल ट्रू। कंट्रोल अंदर गया, अब क्या प्रिंट करो, इन्फो ऑफ ptr, यानी इन्फो ऑफ 1007, क्योंकि ptr अब 1007 है। अब इन्फो ऑफ 1007 कितना आया, 1007 का इन्फो इज c, सो c प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगला स्टेप आएगा, अब हम ptr को अपडेट करेंगे, कैसे, ptr कितना है, ptr इज करंटली 1007, करंटली ptr इज 1007। 1007 का लिंक कितना है 1010, इसकी वैल्यू इज 1010। अब 1010 हमने ptr में डाल दिया, यानी ptr की अब न्यू वैल्यू कितनी हो गई 1010। और जैसे ptr में 1010 गया, ptr ने 1007 को पॉइंट करना बंद कर दिया और 1010 को पॉइंट करना शुरू कर दिया। फिर से लूप चली, क्या अभी ptr नल नहीं है, ये अभी भी ट्रू है, ptr अभी भी नल नहीं है, ptr तो 1010 है। कंट्रोल लूप के अंदर आया, अब क्या प्रिंट करो, इन्फो ऑफ ptr, यानी इन्फो ऑफ 1010। व्हाट इज इन्फो ऑफ 1010, दैट इज d।
सो हमने क्या प्रिंट करवाया, हमने प्रिंट करवाया इन्फो ऑफ 1010, तो डी प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब देखते हैं ये स्टेटमेंट अब क्या बनेगी। नए पीटीआर को क्या बना दो, लिंक ऑफ पुराना पीटीआर। पुराना पीटीआर कितना है 1010, 1010 का लिंक कितना है, दैट इज नल। सो पीटीआर की न्यू वैल्यू कितनी हो गई, नल। अब पीटीआर में 1010 नहीं पढ़ा, पीटीआर में क्या पढ़ा है, नल। जैसे ही पीटीआर में नल चला गया, पीटीआर ने अब किसी नोड को पॉइंट नहीं करना, क्योंकि पीटीआर में अब किसी नोड का एड्रेस नहीं है, पीटीआर में अब क्या है, नल। ठीक है, पीटीआर कंटेन्स नल। अब फिर से लूप चली, क्या पीटीआर नल नहीं है, अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई कि पीटीआर नल है। कंट्रोल लूप से बाहर आया और एग्जिट हो गया, और देखो सारी नोड्स ट्रावर्स हो गई। क्लियर। अब इस एल्गोरिदम को थोड़ा डीप में स्टडी करते हैं। इस एल्गोरिदम में मेन 3 स्टेप्स थे। पहला स्टेप ने क्या किया, हमने पीटीआर को स्टार्ट की वैल्यू दे दी ताकि पीटीआर पहली नोड को पॉइंट करना शुरू कर दे, पहली नोड स्टार्ट से ही मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमने चेक किया कि क्या नल तो नहीं आ गया, यानी पीटीआर में नल तो नहीं चला गया। पीटीआर में नल कब जाएगा, जब पीटीआर इस नोड को भी प्रोसेस कर लेगी, इसको भी कर लेगी, इसको भी कर लेगी, इसको भी कर लेगी, उसके बाद पीटीआर में नल चल जाएगा। कैसे, वो भी देखते हैं। हमने हर स्टेप में क्या किया, हमने जब पीटीआर जहां भी है, चाहे इधर है, चाहे पीटीआर इधर है, चाहे पीटीआर इधर है, चाहे पीटीआर इधर है, हमने हर स्टेप में क्या किया, इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर को प्रिंट करवा दिया, ABCD। और जब एक नोड के इंफॉर्मेशन पार्ट को प्रिंट करवा दिया, उसके बाद हमने पीटीआर को आगे शिफ्ट कर दिया। जितने भी एल्गोरिथम्स हम लिंक लिस्ट में करेंगे ना, पीटीआर को या किसी पॉइंटर को आगे शिफ्ट करने का हमेशा ये स्टेप होगा, पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर। अगर पीटीआर एक पॉइंटर वेरिएबल मैं यूज कर रही हूं, तो मेरा उसको आगे भेजने का क्या स्टेप होगा, पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर। जैसे पीटीआर सपोज यहां पर है, पीटीआर है 1110, तो अगली नोड पे कैसे भेजूंगी, 1110 के लिंक में जो है, अब वो बना दो पीटीआर को 1021, तो पीटीआर यहां आ जाएगी। अब अगली नोड में कैसे भेजूंगी, लिंक ऑफ 1021, दैट इज 1007, अब पीटीआर 1007 आ जाएगी। सो ये स्टेप हर एल्गोरिथम में यूज होगा पॉइंटर वेरिएबल को आगे शिफ्ट करने के लिए। सो आई होप इट इज क्लियर। Now, next algorithm after traversing is searching. Algorithm to search an element from a linked list. Searching के हम 2 तरह के algorithms करेंगे। Number 1, when linked list is not sorted, यानी linked list ascending या descending order या alphabetical order में नहीं है, random पड़ी हुई है, तब कौन सा algorithm चलेगा। And second searching का हम करेंगे when algorithm to search an element from a linked list when linked list is sorted. So searching के हम 2 types of algorithm study करेंगे, when linked list is not sorted and when linked list is sorted. So first of all, let us discuss the algorithm of searching when our linked list is not sorted. So we have given the name of the algorithm as search underscore unsorted, and there are 5 parameters: info, link, start, item and lock. Then we will explain those parameters. What is info? We know info is a one-dimensional array which stores information fields of all the nodes of linked list. Info, link, start, ये पैरामीटर्स हमेशा सेम रहेंगे हर एल्गोरिथम में, कि इन्फो वो वन डायमेंशनल एरिया जिसमें सारे नोड्स के, लिंक लिस्ट के सारे नोड्स के इंफॉर्मेशन फील्ड्स हैं। लिंक वो वन डायमेंशनल एरे है जिसमें लिंक लिस्ट के सारे नोड्स के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड्स हैं। और स्टार्ट वो वेरिएबल है जिसमें लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा। ये 3 पैरामीटर्स तो हर एल्गोरिथम में आएंगे और उनकी डिस्क्रिप्शन यही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट वी नीड आइटम, क्योंकि हमने सर्च करना है तो कोई ना कोई आइटम तो होगा ना जिसको सर्च करना है। सो आइटम इट स्टोर्स वैल्यू टू बी सर्च्ड, जो वैल्यू को हमने सर्च करना है वो आइटम में पड़ी होगी। एंड लॉक, लॉक क्या है, लॉक ना इनिशियली एम्प्टी है, एक एम्प्टी वेरिएबल है, इनिशियली लॉक इज एम्प्टी। ठीक है, लॉक में हम जब सर्च कर लेंगे ना आइटम को लिंक लिस्ट में, तो उस नोड का जो एड्रेस होगा वो लॉक में चला जाएगा अगर सर्च सक्सेसफुल है। डू यू रिमेंबर कि सर्चिंग में 2 केसेस बन जाते हैं, एक अगर सर्चिंग सक्सेसफुल है, एक अगर सर्चिंग अनसक्सेसफुल है।
सक्सेसफुल सर्च का मतलब कि हमें वो एलिमेंट लिंक लिस्ट में या किसी डेटा स्ट्रक्चर में मिल गया है, दैट इज सक्सेसफुल सर्च। और अगर वो एलिमेंट लिस्ट में या किसी डेटा स्ट्रक्चर में है ही नहीं तो वो हमें मिलेगा ही नहीं, उस तरह की सर्च को हम कहते हैं अनसक्सेसफुल। सो अगर सक्सेसफुल सर्च है यानी लिंक लिस्ट में आइटम मिल गया है तो वो आइटम कौन सी नोड में पड़ा हुआ है उस नोड का एड्रेस लॉग में स्टोर हो जाएगा। और अगर सर्च अनसक्सेसफुल है यानी आइटम हमें मिला ही नहीं लिस्ट में तो हम लॉग में नल डाल देंगे। सो लॉग विल कंटेन लोकेशन ऑफ एलिमेंट टू बी सर्च्ड फॉर सक्सेसफुल सर्च और नल फॉर अनसक्सेसफुल सर्च। सो इनिशियली लॉग खाली है, लॉग में कुछ नहीं है। जब हम एलिमेंट को सर्च कर लेंगे, अगर एलिमेंट मिल जाता है तो उसका एड्रेस लॉग में डाल देंगे, और अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता तो नल को लॉग में डाल देंगे। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द एल्गोरिदम एंड लेट मी टेक एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू this algorithm. Now this algorithm is to search an element in an unsorted linked list. So I have made one unsorted linked list to explain you the concept. ठीक है? Okay. Now what are the steps? पहला स्टेप हमेशा यही होगा हर एल्गोरिदम का, set ptr equals to start, क्योंकि हमने पहले एलिमेंट से शुरू करना है। अब हम करेंगे क्या, हमने इस एल्गोरिदम में करना क्या, ध्यान से सुनो। हमने पहले नोट पीटीआर को पहली नोड का एड्रेस दे दिया तो पीटीआर ने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे। नाउ लेट मी सपोज द आइटम विच आई एम गोइंग टू सर्च इज 7। लेट मी सपोज आई हैव टू सर्च 7। आइटम की वैल्यू 7 है। तो एल्गोरिथम कैसे चलेगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम पीटीआर को पहली नोड का एड्रेस दे देंगे और चेक करेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर आइटम के बराबर है। अगर है तो हम इसका एड्रेस जो पीटीआर की वैल्यू होगी, पीटीआर में इस नोड का एड्रेस है ना, तो पीटीआर की जो वैल्यू होगी वो हम लॉग में डाल देंगे कि 7 इसमें पड़ा हुआ है। लेकिन अभी हमें 7 नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, हम अगली नोड में शिफ्ट कर लेंगे। और शिफ्ट करने का स्टेप मैंने आपको बताया था क्या होता है, पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर। अब हम नेक्स्ट नोड का इन्फो चेक करेंगे, क्या ये आइटम के बराबर है, नहीं है। फिर हम नेक्स्ट नोड में जंप कर लेंगे। फिर हम इस नोड का इंफॉर्मेशन पार्ट चेक करेंगे कि क्या ये आइटम के बराबर है, यस ये है। तो इस नोड का एड्रेस हम लॉग में डाल देंगे और एल्गोरिथम हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एक केस में वो भी करवाऊंगी अनसक्सेसफुल सर्च का, तब मैं आइटम की वैल्यू को 6, 2, 7, 9 के अलावा कुछ लूंगी, तो वो भी हम करेंगे। सो सबसे पहले ये वाला केस देखते हैं, जब आइटम 7 है तब हमारा एल्गोरिथम कैसे वर्क कर रहा है। ओके, फर्स्ट स्टेप, सेट पीटीआर इक्वल्स टू स्टार्ट। What is start? Start is 1 1 1 1 0. So हमने start यानी 1 1 1 0 की वैल्यू पीटीआर में डाल दी। So अब पीटीआर में क्या वैल्यू गई, पीटीआर में वैल्यू गई 1 1 1 0। तो पीटीआर ने 1 1 1 0 वाली नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया। अब ये स्टेप्स हमने रिपीट करने हैं जब तक पीटीआर नल नहीं हो जाती। क्या पीटीआर नल है? नो, पीटीआर तो नल नहीं है। सो इट मीन्स दिस स्टेप इज ट्रू कि पीटीआर नल नहीं है, पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, दिस इज ट्रू। कंट्रोल लूप के अंदर आ जाएगा इस स्टेप में। ठीक है, इस स्टेप में क्या चेक हो रहा है कि क्या इंफॉर्मेशन पार्ट पीटीआर आइटम के बराबर हो गई है। लेट अस चेक व्हाट इज पीटीआर। पीटीआर इज 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 का इंफॉर्मेशन पार्ट कितना है, 1 1 1 0 का इंफॉर्मेशन पार्ट इज 6 और आइटम कितनी है 7। तो क्या 6 इक्वल्स टू 7 है? नो, इट मीन्स इफ नहीं चलेगी, एल्स चलेगी। और हम अगली नोड पे जंप कर लेंगे। जंप करने का क्या स्टेप होता है, पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर। कैसे चलेगा, पीटीआर कितना है 1 1 1 0, 1 1 1 0 का लिंक कितना है, 1 1 1 0 का लिंक इज 1 2 1 1। सो पीटीआर की न्यू वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 1 1। सो पीटीआर की अब वैल्यू 1 1 1 0 नहीं रही, पीटीआर की न्यू वैल्यू कितनी हो गई 1 2 1 1। और पीटीआर ने 1 2 1 1 वाली नोट को पॉइंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर से लूप चली, अभी भी पीटीआर नल नहीं है, कंडीशन इज ट्रू, कंट्रोल लूप के अंदर आएगा। अब देखते हैं अब इफ ट्रू होती है कि फॉल्स होती है, इफ चलेगी कि एल्स चलेगी। नाउ लेट अस चेक इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर। इफ इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर, पीटीआर इज 1 2 1 1, 1 2 1 1 का इंफॉर्मेशन पार्ट इज 2।
सो इज 2 इक्वल्स टू आइटम दैट इज 7? नो, अभी भी ये ट्रू नहीं है इफ, तो कंट्रोल एल्स में जाएगा और अगली नोट पे जंप करेंगे. जंप करने का स्टेप क्या होता है? पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर. लेट अस सी हाउ दिस स्टेप वर्क्स. नाउ व्हाट इज पीटीआर? पीटीआर इज 1 2 1 1. व्हाट इज लिंक ऑफ 1 2 1 1? 1 2 1 1 का लिंक कितना है? 1007. सो इसकी कितनी वैल्यू बनी? 1007. इस स्टेप की वैल्यू बनी, इस कैलकुलेशन की वैल्यू बनी 1007 और ये चली गई अब पीटीआर में. यानी पीटीआर की वैल्यू अब अपडेट हो गई, 1211 नहीं रही. पीटीआर की वैल्यू कितनी बन गई? पीटीआर की वैल्यू बन गई 1007 और पीटीआर ने 1007 वाली नोट को पॉइंट करना शुरू कर दिया. पीटीआर में जौन सी नोट की वैल्यू होगी पीटीआर ने उसको पॉइंट करना शुरू कर देना है. ठीक है, चलो अब फिर से लूप चलेगी. फिर से पीटीआर नल नहीं है, पीटीआर 1007 है, नल नहीं है, कंडीशन ट्रू है. कंट्रोल फिर से लूप के अंदर चला गया. अब देखते हैं कि अब इफ चलती है कि एल्स चलती है. ठीक है, लेट अस चेक. नाउ इफ इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर, व्हाट इज पीटीआर? पीटीआर इज 1007. व्हाट इज इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ 1007? दैट इज 7. सो 7 इज इक्वल टू आइटम दैट इज 7. दिस इज ट्रू. क्या ये क्वेश्चन है? क्या 7 के बराबर है? क्या इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर आइटम के बराबर है? यस. तो अब इफ चलेगी, यानी हमें सक्सेसफुल सर्च मिल गई, हमें आइटम मिल गई, हमें वो वैल्यू मिल गई. तो कहाँ मिली? 1007 वाली नोट में. तो इसको हम लॉक में डाल देंगे कि लोकेशन इज 1007. लोकेशन ऑफ 7 इन लिंक लिस्ट इज 1007. तो वो कैसे डालेंगे? 1007 कहाँ पड़ा हुआ है? पीटीआर में. सो हम लॉक में पीटीआर की वैल्यू डाल देंगे जो करंट पीटीआर है, क्योंकि वहां पर हमें उस पीटीआर के इन्फो में हमें आइटम मिल गई. सो पीटीआर इज 1007 और इसको हम लॉक में डाल देंगे. सो लॉक की वैल्यू कितनी हो गई? लॉक इज 1007 और हम एल्गोरिथम को वहीं एग्जिट कर देंगे. फाइन. सो दिस वॉज कि जब हमें आइटम मिल गई है लिंक लिस्ट में, यानी जब हमारा ये जो सर्च है सक्सेसफुल है. ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. जब हमारा सर्च अनसक्सेसफुल है, फिर आप देखो फिर किसी भी केस में इन्फो पीटीआर आइटम के बराबर नहीं आएगा. सो लेट अस सी दैट केस ऑल्सो. सो फॉर दैट केस लेट अस टेक आइटम इक्वल्स टू, जो वैल्यू लिंक लिस्ट में नहीं है, लेट अस टेक आइटम इक्वल्स टू 11. ठीक है, अब हमने 11 को सर्च करना है. वी आर टू सर्च 11 इन द लिंक लिस्ट. ठीक है, सो लेट अस सी हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स. आई विल बी लिटिल बिट फास्टर देन द प्रीवियस डिस्कशन बिकॉज आपको काफी समझ आ गया हुआ है. ओके, लेट अस स्टार्ट. सेट पीटीआर इक्वल्स टू स्टार्ट. सो व्हाट इज स्टार्ट? स्टार्ट इज 1110. सो पीटीआर becomes, PTR is a pointer variable, it becomes 1110 and it starts pointing the node having address 1110. Then repeat these steps while PTR is not equal to null. Now in our case PTR is not null, so this condition is true. Control will move inside the loop. Inside the loop there is if statement. If information part of PTR is 1110, information part of 1110 is 6, is equal to item is 11. So this is false, 6 is not equal to 11, so else चलेगा. And in else हम क्या करेंगे? PTR को आगे shift करेंगे. So for that new PTR equals to link of पुराना PTR. What is पुराना PTR? That is 1110. 1110 का link कितना है? 1211. So इसकी वैल्यू कितनी बनी? 1211. That would be the new PTR. So PTR has been updated to 1211. So PTR will start pointing the node 1211. It will start pointing the node having address 1211 now. Fine. Now again the loop will be executed. Again this condition is true. PTR is not equal to null. फिर से if check होगी. अब देखते हैं अब क्या बनता है. Now if information part of PTR is 1211. 1211 का information part is 2. is equal to item that is 11. अभी भी if false है तो else चलेगी. फिर हम PTR को आगे शिफ्ट करेंगे. तो उसके लिए कैसे शिफ्ट होंगी? देखो, PTR equals to link of PTR. PTR is 1211. 1211 का लिंक कितना है? 1007. सो PTR की न्यू वैल्यू कितनी अपडेट हो गई? 1007. सो PTR की वैल्यू 1211 नहीं रही, 1007 हो गई. और PTR ने
इस नोड को पॉइंट करना बंद कर दिया और कौन सी नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया, हैविंग द एड्रेस 1007। ओके, फिर से लूप चली, अभी भी पीटीआर नल नहीं है, कंडीशन इज ट्रू, कंट्रोल लूप के अंदर आया। क्या इन्फो पीटीआर आइटम के बराबर है? इन्फो पीटीआर इज 7, आइटम इज 11, सो 7 इज नॉट इक्वल टू 11। अभी भी इफ ट्रू नहीं है एल्स चलेगी। फिर से हम आगे बढ़ा देंगे पीटीआर को। सो फिर से ये स्टेप एग्जीक्यूट होगा। सी हाउ PTR equals to link of PTR. New PTR equals to link of old PTR. What is old PTR? 1007. 1007 का लिंक कितना है? 1911. So new PTR की वैल्यू कितनी हो गई? 1911. So PTR की वैल्यू कितनी हो गई? 1911. So PTR has started pointing the node having address. PTR has pointing the node having address 1911 नाउ। फाइन, फिर से लूप चली, अभी भी पीटीआर नल नहीं है, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, कंट्रोल लूप के अंदर आया। अब देखते हैं अब इफ में क्या बनता है। नाउ इफ इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर, व्हाट इज पीटीआर? 1911, इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ 1911 इज 9, इफ 9 इज इक्वल टू आइटम दैट इज 11, अभी भी फॉल्स है, फिर एल्स चलेगी। अब पीटीआर को फिर से आगे शिफ्ट करेंगे। सो पीटीआर को आगे शिफ्ट करने के लिए अगेन दैट स्टेप, set PTR equals to link of PTR. PTR is 1911, 1911 का लिंक कितना है? 1911 का लिंक इज नल। सो इसका रिजल्ट कितना आया? लिंक ऑफ 1911 इज नल। सो पीटीआर में अब क्या चला गया? नल। सो अब पीटीआर में क्या एड्रेस चला गया? पीटीआर में कोई इनवैलिड एड्रेस चला गया, दैट इज नल। सो पीटीआर में जैसे ही नल गया, पीटीआर अब किसी नोड को पॉइंट नहीं कर रही क्योंकि पीटीआर में किसी नोड का एड्रेस नहीं है, उसमें नल है। फिर से लूप चली, अब देखो, अब हम कह रहे हैं लूप में कंडीशन है कि पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, लेकिन पीटीआर इज इक्वल टू नल, यानी ये कंडीशन अब हमारी फॉल्स हो गई। ठीक है, कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा, लूप यहाँ खत्म हो रही है, लूप के बाहर इस स्टेप में आ जाएगा। सेट लॉक इक्वल्स टू नल, हम लॉक में क्या डाल देंगे? नल। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमने इस नोड को भी, इस नोड के इन्फो को भी आइटम से कंपेयर कर लिया, इसके इन्फो को भी आइटम से कंपेयर कर लिया, इसके इन्फो को भी आइटम से कंपेयर कर लिया, इसके इन्फो को भी आइटम से कंपेयर कर लिया, और फाइनली पीटीआर में नल आ गया, यानी लिंक लिस्ट खत्म हो गई, पर हमें 11 नहीं मिला। तो हम लूप से बाहर आ गए और हमने लॉक में नल डाल दिया। क्यों? क्योंकि ये अनसक्सेसफुल सर्च है। हम लॉक में क्या डालते? किसी नोड का एड्रेस तो डाल नहीं सकते थे क्योंकि किसी नोड में 11 तो मिला नहीं, तो लॉक में हमने क्या डाल दिया? नल, और एल्गोरिदम वहीं खत्म हो गया। सो दिस वॉज व्हेन द सर्च इज अनसक्सेसफुल इन केस व्हेन द लिंक लिस्ट इज नॉट सॉर्टेड। Next searching algorithm is to search an element from linked list when linked list is sorted. Fine. Now in this case the linked list would be sorted either ascending way or in descending way. The name of the algorithm is search underscore sorted and the parameters are info link start item lock. Info, it is a one-dimensional array which stores information fields of all the nodes of linked list. Link, it is a one-dimensional array which stores the next pointer fields of all the nodes of linked list. Start, it is a variable which stores the address of first node of linked list. I hope these three variables, these three parameters are clear क्योंकि बार बार ये algorithms में आते हैं. Then item, item में वो value होगी जिसको हमने search करना है. It is a variable which stores the value to be searched. And lock, lock starting में empty होगा, initially lock empty होगा. लॉक में अगर तो हमें एलिमेंट मिल जाता है तो उस नोड का एड्रेस स्टोर्ड होगा, उसको हम कहेंगे सक्सेसफुल सर्च। एंड अगर एलिमेंट नहीं मिलता लिंक लिस्ट में तो हम लॉक में नल डाल देंगे विच शोज दैट द सर्च इज अनसक्सेसफुल। ठीक है, लॉक इज इनिशियली एम्प्टी। सो टू एक्सप्लेन द स्टेप्स लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉर्टेड लिंक लिस्ट फॉर यू। नाउ सी, this is a sorted linked list. See the values, the information, the data, it is present in sorted order, ascending order 2, 5, 8, 10. So let us take two cases. Case number 1, when we have to search item equals to, let us say 10.
So we know that in this case the search would be successful, है ना, क्योंकि 10 is present in the list. So let us start discussing the steps. Okay, step number 1, set PTR equals to start. So what is start? Start is 1001. So put 1001 in PTR. So PTR would be 1001 and it is pointing to the node having address 1001 now. Fine. Repeat these steps while PTR is not equal to null. Now in our case PTR is not null. It means this condition is true. PTR null नहीं है. PTR 1001 है. ठीक है. कंट्रोल लूप के अंदर आया. लूप के अंदर क्या है कि क्या इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ PTR आइटम के बराबर है. PTR is 1001. इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ 1001 is 2. क्या 2 10 के बराबर है? No. So if जो है वो false हो जाएगी. ठीक है. तो कंट्रोल नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा? एल्स इफ. अब देखो इस एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है, थोड़ा सा इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये सॉर्टेड लिंक लिस्ट है. ठीक है. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. सपोज हमने सर्च करना है आइटम इक्वल्स टू 7. लेट अस सपोज हमने क्या सर्च करना है? आइटम इक्वल्स टू 7. मैं आपको बता रही हूं कि ये एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगा. या हमने सॉर्टेड और अनसॉर्टेड के लिए अलग अलग एल्गोरिथम्स क्यों बनाए हैं. अनसॉर्टेड के केस में क्या होता था, जब ये एरे सॉर्टेड लिंक लिस्ट सॉर्टेड नहीं थी, तब हम क्या करते थे, हम हर इन्फो पीटीआर को आइटम से कंपेयर करते थे. अगर नहीं मैच करती थी तो हम पीटीआर को आगे बढ़ा देते थे. फिर हम उसके इन्फो को आइटम से कंपेयर करते थे. नहीं मैच करती थी, पीटीआर को आगे बढ़ा देते थे. फिर उसके इन्फो को आइटम से कंपेयर करते थे. नहीं मैच करती थी, पीटीआर फिर आगे चल जाता था, तब तक जब तक पीटीआर में नल नहीं चल जाता, यानी लिस्ट एंड नहीं हो जाती. ठीक है. अब देखो हमें पता है कि लिस्ट सॉर्टेड है. सपोज मैंने 7 सर्च करना है. ठीक है. तो क्या करेंगे, पीटीआर सबसे पहले स्टार्ट को पॉइंट करेगी, यानी पीटीआर में इस नोड का एड्रेस होगा. हम इसके इन्फो को आइटम से कंपेयर करेंगे. ये दोनों मैच नहीं करते. अब हम देखेंगे कि क्या ये जो इन्फो है ये आइटम से छोटा है, या इन अदर वर्ड्स क्या आइटम इस इन्फो से बड़ी है. यस, 7 इज ग्रेटर देन 2. इसका मतलब 7 आगे हो सकता है, क्योंकि लिंक लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में है. 7 और 2 मैच नहीं किए, लेकिन चांसेस कि 7 आगे हो सकता है. फिर हम आगे गए, हमने 5 को 7 से मैच किया, मैच नहीं हुआ. तो हमने देखा कि क्या 7 5 से बड़ा है. इट मीन 7 आगे हो सकता है. यस, 7 इज ग्रेटर देन 5. इट मीन जो आइटम सर्च कर रहे हैं वो 5 के बाद मिल सकती है. फिर हम नेक्स्ट नोड पर गए, हमने 8 और आइटम को सर्च किया, मैच किया, ये मैच नहीं हुए. तो अब देखो, अब आइटम जो है 8 से छोटी है और ये लिंक लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में है. इसका मतलब 7 8 के बाद वाले जितनी नोड्स हैं उनमें तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद तो सारी बड़ी नोड्स हैं. 8 से ग्रेटर नोड्स हैं. यानी 7 अगर होता तो इस नोड से पहले मिल जाता, पर इस नोड से पहले नहीं मिला, इसलिए कंट्रोल इस नोड पर आया. इट मीन्स हम यहीं पर कह देंगे कि 7 इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट. हम अगली नोड्स को 7 के साथ कंपेयर ही नहीं करेंगे. दिस इज द डिफरेंस जो सॉर्टेड वाला एल्गोरिथम है अनसॉर्टेड का. सॉर्टेड में अगर अनसॉर्टेड लिस्ट होती तो क्या करते, हम फिर अगले नोड को भी 7 से कंपेयर करते, अगली नोड को भी 7 से कंपेयर करते, अगली नोड को भी 7 से कंपेयर करते. लेकिन इसमें हमें जब ये वाली नोड पर हम आए, हमने देखा कि आइटम जो है इस नोड के इन्फो से छोटी है. यानी अगर 7 होता तो इस नोड से पहले मिल जाता, क्योंकि इसके बाद तो 8 से ग्रेटर एलिमेंट्स ही होंगे सारे. और कंट्रोल यहां पहुंचा, इट मीन 7 नहीं मिला. ठीक है. और इसके बाद भी 7 होने के चांसेस आर 0. कोई चांस नहीं है इसके बाद 7 मिले, क्योंकि इसके बाद सारे नोड्स 8 से बड़ी होंगी, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है लिस्ट. ठीक है. सो हम इस नोड पर ही कह देंगे कि आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट. हम अगली नोड्स, सपोज अगली 50 नोड्स पड़ी हैं, हम 50 नोड से कंपेयर नहीं करेंगे. हम यहीं पर रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे कि 7 लिस्ट में है ही नहीं, क्योंकि पहले नहीं मिला और आगे तो हो ही नहीं सकता. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस. ठीक है. सो हम आइटम 10 के साथ डिस्कस कर रहे थे. हमने सबसे पहले इफ ये वाली स्टेटमेंट चेक की थी. ठीक है. इफ इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर इज इक्वल टू आइटम 2 इज नॉट इक्वल टू 10. ठीक है. 10 हम सर्च कर रहे थे. सो 2 इज नॉट इक्वल टू 10. सो इफ ट्रू नहीं हुई, कंट्रोल कहाँ चला गया? कंट्रोल चला गया एल्स इफ पे. एल्स इफ
क्या इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर आइटम से छोटी है, या क्या आइटम इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर से बड़ी है? इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर इज 2, आइटम इज 10. यस, आइटम इज ग्रेटर देन 2. आइटम इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर यानी 2 से बड़ी है, आइटम इज 10. आइटम इज ग्रेटर देन 10 इज ग्रेटर देन 2. इसका मतलब 10 आगे हो सकता है, सो हम आगे बढ़ा देंगे पीटीआर को विद पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर. अब मैं स्टेप को और अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं सीधा पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर से क्या हो जाएगा, पीटीआर में क्या आ जाएगा 1 1 1 1, और पीटीआर अब इसको नहीं पॉइंट, इस नोट को नहीं पॉइंट करेगा, पीटीआर अब 1 1 1 1 वाली नोट को पॉइंट करेगा. ठीक है, अब एल्जिफ चल गई, ये चल गई, ये ट्रू थी तो ये वाली एल्जिफ नहीं चलेगी. फिर से लूप चली. ठीक है, अब लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगी. सी, अब देखो क्या, अब पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, दिस इज स्टिल ट्रू. पीटीआर तो 1 1 1 है, नल नहीं है, कंट्रोल अंदर गया. क्या इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर आइटम के बराबर है? नो, नहीं है, तो ये इफ नहीं चली. एल्जिफ देखेंगे. क्या इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर दैट इज 5 आइटम से छोटी है, यानी आइटम इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर से बड़ी है? यस, इसका मतलब आगे चांसेस हैं कि 10 मिल जाए, तो हम पीटीआर को आगे बढ़ा देंगे. पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर. पीटीआर इज 1 1 1 1, लिंक ऑफ 1 1 1 इज 1 2 1 1. सो पीटीआर की नई वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 1 1, एंड पीटीआर विल स्टार्ट पॉइंटिंग द नोट हैविंग द एड्रेस 1 2 1 1. ये एल्जिफ चल गई तो ये नहीं चलेगी, एक ही चलती है ना, इफ एल्जिफ से एक ही चलती है. ठीक है, फिर से लूप चली, नेक्स्ट आइट्रेशन फिर से एग्जीक्यूट हुई. फिर से चेक हुआ कि क्या अब पीटीआर नल के बराबर तो नहीं है, नहीं, पीटीआर अभी भी नल के बराबर नहीं है, सो इट मीन्स दिस कंडीशन इज स्टिल ट्रू. फिर से इफ चेक हुई, क्या इन्फो पीटीआर आइटम के बराबर है? इन्फो पीटीआर इज 8, 8 10 के इक्वल नहीं है, इफ नहीं चली. फिर आगे क्या चेक हुआ, क्या इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर, इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर इज 8, क्योंकि पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है, इसका इन्फॉर्मेशन 8 है. 8 क्या आइटम अभी भी 8 से बड़ी है? यस, इसका मतलब आइटम आगे हो सकती है, सो हमने आगे बढ़ा दिया. सो पीटीआर में अब क्या चला जाएगा, लिंक ऑफ दिस दैट इज 1 0 1 0, एंड पीटीआर विल स्टार्ट पॉइंटिंग द नोट हैविंग द एड्रेस 1 0 1 0. ठीक है, फिर से लूप चली, फिर से पीटीआर नल नहीं है. क्या अब इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर आइटम के बराबर है? यस, नाउ इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर, पीटीआर इज 1 0 1 0, इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ 1 0 1 0 इज इक्वल टू आइटम. सो इट मीन्स इफ जो है वो ट्रू हो जाएगा, हमें आइटम मिल गई. लॉग में पीटीआर डाल दो, यानी 1 0 1 0, यानी उस नोट का एड्रेस डाल दो जिसमें 10 पड़ा हुआ है. लॉग में हमने 1 0 1 0 डाल दिया एंड एल्गोरिथम को वहीं एग्जिट कर दिया, यानी हमें 10 का एड्रेस मिल गया. क्लियर, ये वाला केस क्लियर हुआ. चलो एक और केस लेते हैं इस एल्गोरिथम को समझाने के लिए. नाउ लेट मी टेक द नेक्स्ट केस व्हेन आइटम इज 7. ठीक है, ये अनसक्सेसफुल सर्च का केस है. सक्सेसफुल का मैंने आपको समझा दिया, अब अनसक्सेसफुल का करते हैं. लेट अस टेक व्हेन आइटम इज 7. ओके, सेट पीटीआर इक्वल्स टू स्टार्ट. सो पीटीआर में हमने स्टार्ट डाल दिया, यानी 1 0 0 1 डाल दिया. सो पीटीआर विल स्टार्ट पॉइंटिंग द नोट हैविंग एड्रेस 1 0 1 1. Repeat these steps while PTR is not equal to null. Yes, PTR is not equal to null, so this is true. Control will move inside the loop to check if statement. Is information part of PTR equals to item? Is information part of PTR equals to item? No. If false हो जाएगी, control else if check करेगा. Else if information part of PTR is less than item. Item is 7. Information part of PTR is 2. Yes, 2 is less than 7 और 7 is greater than 2, यानी आइटम इस नोड से बड़ी है, यानी आगे हो सकती है. सो हम PTR को आगे बढ़ा देंगे. सो PTR इक्वल्स टू लिंक ऑफ PTR. PTR इज 1 0 0 1, लिंक ऑफ 1 0 0 1 इज 1 1 1 1. सो न्यू PTR would be 1 1 1 1 and PTR has started pointing this note. Fine. ये चल गई तो ये नहीं चलेगी. फिर से लूप चली. नाउ अगेन PTR इज नॉट इक्वल टू नल, सो दिस कंडीशन इज अगेन ट्रू. अब इफ चेक होगा, क्या इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ PTR दैट इज 5 इज इक्वल टू आइटम? नो. सो इफ नहीं चली,
एल्स इफ चेक होगी। क्या इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर, पीटीआर इज 1111, इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर इज 5, इज लेस देन आइटम दैट इज 7। क्या 7 5 से भी बड़ी है? यस, यानी 7 आगे हो सकती है। सो पीटीआर को आगे बढ़ा दो। पीटीआर इज 1111, लिंक ऑफ 1111 इज 1211। सो पीटीआर की नई वैल्यू कितनी हो गई? 1211। सो पीटीआर की न्यू वैल्यू होगी 1211। पीटीआर ने इस नोट को नहीं, अब इस नोट को 1211 को लिंक करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये चीज चल गई तो ये नहीं चलेगा। ओके, फिर से लूप चली। नाउ अगेन पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, सो दिस इज ट्रू। कंट्रोल विल मूव इनसाइड द इफ स्टेटमेंट। सो इफ information part of PTR is equal to item, information part of PTR is 8, item is 7, no 8 is not equal to 7, so if नहीं चलेगी। फिर else if चलेगी। क्या आइटम अभी भी बड़ी है information part of PTR से? let us see, is information part of PTR, that is information part of PTR is 8, PTR is this ना, so information part is 8, is 8 less than 7? क्या 7 अभी भी आइटम से बड़ी है? नहीं, 7 नहीं बड़ी। सो ये भी अब फॉल्स हो गया, तो ये एल्स इफ चेक होगा। क्या इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर दैट इज 8 आइटम से बड़ी है? यस, इसका मतलब हम उस नोट पर पहुंच गए जो आइटम से बड़ी, जिसकी इंफॉर्मेशन आइटम से बड़ी है, यानी इसके बाद तो कभी आइटम हो ही नहीं सकती। तो हमने इसी केस में क्या कर दिया? लॉग में नल डाल दिया, क्योंकि अनसक्सेसफुल सर्च है। क्योंकि हम अगर 7 होता तो पीछे कहीं मिल जाता, लेकिन हम इस नोट पर पहुंच गए और इसकी वैल्यू 7 से बड़ी है, यानी 7 आगे नहीं हो सकता, पीछे भी नहीं मिला, इसके इक्वल भी नहीं है। इट मीन 7 है ही नहीं लिस्ट में। सो हमने लॉग में नल डाल के वहीं एल्गोरिथम को एग्जिट कर दिया। क्लियर? मैं एक और केस लूंगी, वो भी अनसक्सेसफुल सर्च का केस होगा। ठीक है, ताकि ये वाला स्टेप कब चलेगा ये मैं आपको बता सकूं। ये स्टेप अभी दोनों केसेस में नहीं चला। When item was 10, तब भी हमें आइटम मिल गई थी और ये वाला स्टेप चला था। जब आइटम 7 है तब ये वाला स्टेप चला, लॉग में नल आ गया। ठीक है, हम यहां पर तो कभी गए ही नहीं। तो एक और केस लेती हूं मैं आपको समझाने के लिए। स्टूडेंट्स, मुझे आपको एक बात कहनी है कि एग्जाम्स में ना आपने जस्ट एल्गोरिथम्स लिखने हैं, जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं वही लिखना है। ये जो मैं आपको समझा रही हूँ इस तरह के एग्जाम्पल्स लेके, ये जस्ट मेरी एक्सप्लेनेशन है। इस तरह का आपने एग्जाम्स में कुछ नहीं लिखना। ठीक है, ये जस्ट आपको एल्गोरिथम समझाने का वे है। बाकी आपने एग्जाम्स में अगर आ जाता है राइट एन एल्गोरिथम टू सर्च एन एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट व्हेन लिंक लिस्ट इज सॉर्टेड, तब आप ये वाला एल्गोरिथम एक्सप्लेन करोगे। यानी जो एल्गोरिथम पूछा गया आपने उस एल्गोरिथम को लिख देना है। पैरामीटर्स भी एक्सप्लेन करने हैं, हाफ मार्क्स पैरामीटर्स के होते हैं। ठीक है, सो आपने जस्ट एल्गोरिथम को लिख देना है। ये जो मैं आपको समझा रही हूँ, दिस इज द वे टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द एल्गोरिथम, दैट हाउ एल्गोरिथम इज वर्किंग। फाइन, ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू द एल्गोरिथम। लेट अस डिस्कस द थर्ड केस व्हेन आइटम इज 72। ठीक है, थोड़ा सा फटाफट डिस्कस करूंगी मैं इस केस को। सेट पीटीआर इक्वल्स टू स्टार्ट। सो पीटीआर में हमने क्या डाल दिया? 1001 एंड पीटीआर स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नोट। क्या पीटीआर नल नहीं है? यस, पीटीआर नल नहीं है, दिस इज ट्रू। कंट्रोल अंदर आया। क्या इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर आइटम के बराबर है? नो, ये नहीं चला। एल्स इफ, क्या इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर आइटम से छोटा है? यस, तो पीटीआर को आगे बढ़ा दो। तो अब नया पीटीआर कितना हो गया? 1111 यूजिंग दिस स्टेप। ये स्टेप अब मैंने एक्सप्लेन नहीं करना। ठीक है, पीटीआर इक्वल्स लिंक ऑफ पीटीआर से पीटीआर लिंक ऑफ पीटीआर, यानी लिंक ऑफ 1001 दैट इज 1111। ये हो गया पीटीआर। अब पीटीआर इसको पॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है, ये चल गया तो ये नहीं चलेगा। फिर से लूप चलेगी। पीटीआर अभी भी नल नहीं है। ठीक है, कंट्रोल लूप के अंदर आया। क्या अब इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर आइटम के बराबर है? नो, अभी भी बराबर नहीं है, तो एल्स इफ चलेगी। क्या इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर आइटम से छोटी है? यस, 5 स्मॉलर देन 72। सो पीटीआर को आगे बढ़ा दो कि चांसेस हैं कि शायद हमें 72 आगे मिल जाए। सो न्यू पीटीआर वुड बी 1211. So PTR will start pointing to
this node. Fine. मैंने थोड़ा नीट कर दिया, ठीक है। तो ये वाली एल्स इफ चली, ये ट्रू हुई थी तो ये नहीं चेक होगी, फिर से नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगी। नेक्स्ट आइट्रेशन में फिर से चेक हुआ, पीटीआर अभी भी नल नहीं है, दिस इज ट्रू, कंट्रोल अंदर आया। क्या अब इन्फो पीटीआर आइटम के इक्वल है? नो, अभी भी नहीं है, ये इफ नहीं चलेगी। एल्स इफ, क्या इन्फो पीटीआर आइटम से छोटा है? यस, 8 इज लेस देन 72, 8 इज लेस देन 72, तो पीटीआर को आगे बढ़ा दो। पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर, पीटीआर इज 1 to 1 1, लिंक ऑफ 1 to 1 1 इज 1 0 1 0, सो पीटीआर की न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 0 1 0। सो पीटीआर अब किसको पॉइंट करना शुरू कर देगा? अब पीटीआर उस नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा जिसका एड्रेस 1 0 1 0 है, यानी दिस नोड, ठीक है। सो ये चल गया स्टेप, तो ये नहीं चलेगा। फिर से नेक्स्ट आइट्रेशन, अगेन पीटीआर इज स्टिल नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, दिस इज ट्रू। कंट्रोल लूप के अंदर क्या अब इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर आइटम के बराबर है? नो, नहीं है, इफ नहीं चली। क्या इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर दैट इज 10 आइटम से छोटी है 72 से? यस, तो पीटीआर को आगे बढ़ा दो। पीटीआर इज 1 0 1 0, सो लिंक पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर, पीटीआर इज 1 0 1 0, 1 0 1 0 का लिंक कितना है? नल। सो न्यू पीटीआर की वैल्यू कितनी हो गई? नल, ठीक है। और जैसे पीटीआर की वैल्यू नल हुई, पीटीआर अब किसी भी नोड को पॉइंट नहीं कर रही। ओके, सो ये स्टेप चला, ये नहीं चलेगा। फिर से नेक्स्ट आइट्रेशन चली, फिर से आइट्रेशन वाली कंडीशन चेक होगी कि पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, लेकिन अब ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि पीटीआर नल के बराबर है। सो दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स, इट मीन्स लूप जो है खत्म हो गई और कंट्रोल लूप के बाहर आ गया। लूप यहां पर खत्म हो गई इधर, एंड कंट्रोल केम आउट ऑफ द लूप। और बाहर हमने क्या लिखा? लॉक में नल डाल दो। सोचो ऐसा क्यों किया हमने? लॉक में हमने नल क्यों डाला? क्यों? क्योंकि हमने 72 को इससे कंपेयर किया, इससे किया, इससे किया, इससे किया, फाइनली लिस्ट खत्म हो गई, 72 नहीं मिला, कंट्रोल लूप के बाहर आ गया क्योंकि पीटीआर में नल जा चुका था, ठीक है। फिर भी 72 नहीं मिला तो लॉग में नल डाल दो कि लोकेशन हमें मिली ही नहीं, हमें कोई आइटम मिला ही नहीं, अनसक्सेसफुल सर्च। आई होप इट इज क्लियर। So students, after discussing the algorithms of traversing and searching में हमने 2 cases पढ़े, when linked list is sorted and when linked list is not sorted. Now the next is to discuss the algorithms of insertion and deletion. लेकिन वो डिस्कस करने से पहले ना एक छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है जो हमने स्टडी करना है। The name of that topic is garbage collection. बड़ा अजीब सा नाम है लेकिन ये रेलिवेंट नेम है। कैसे? अभी आपको पता लग जाएगा। गार्बेज किसको कहते हैं? गार्बेज कहते हैं जो चीज हमें नहीं चाहिए, कूड़ा जो हमारे काम का नहीं है। तो डेटा स्ट्रक्चर की टर्म्स में इसका क्या मतलब है? लेट अस स्टडी। गार्बेज कलेक्शन इज अ प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग ऑल द अनयूज्ड और डिलीटेड नोड्स फ्रॉम मेमोरी टू फॉर्म अ स्पेशल लिस्ट नोन एज अवेयर लिस्ट। अब देखो, आपने कभी नोट किया होगा कि आप कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहे हो, आप कंप्यूटर पे कुछ काम नहीं कर रहे, इवन देन जो सीपीयू है ना उसकी लाइट ब्लिंक कर रही है, यानी और उसमें से कुछ आवाज आ रही है जैसे कि वो कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है सीपीयू, पर आप कुछ काम नहीं कर रहे। आपने डेस्कटॉप खोला हुआ एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर, बट स्टिल यू कैन हियर द नॉइस ऑफ सीपीयू, ठीक है। आपको लग रहा है कि कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, तो उस टाइम पे ना हो सकता है बहुत सारे टास्क हो रहे हों सीपीयू के अंदर, उसमें से एक टास्क होता है गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन में क्या करता है सीपीयू? जितने भी मेमोरी सेल्स अनयूज्ड है ना, लाइक मेमोरी है, मेमोरी में सेल्स हैं, कुछ सेल्स यूज्ड होंगे, कुछ में डेटा पड़ा होगा और कुछ खाली होंगे, ब्लैंक होंगे, कुछ में डेटा नहीं पड़ा होगा। तो गार्बेज कलेक्शन क्या है? सारे अनयूज्ड सेल्स को इकट्ठे करने को गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। इकट्ठे करके एक लिस्ट बना देते हैं हम कि ये वाला सेल एम्प्टी है, फिर ये वाला सेल एम्प्टी है, फिर ये वाला सेल एम्प्टी है, एक लिस्ट में पिरो देते हैं उन सेल्स को। क्यों? क्योंकि अगर इन फ्यूचर हमें अपनी लिंक लिस्ट में कोई नई नोड ऐड करनी है तो हम ये अनयूज्ड सेल्स की जो लिस्ट है ना इसमें से एक नोड उठा लेंगे।
हमें बाद में बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा इंसर्ट करने के लिए कि हम कौन से मेमोरी लोकेशन से लोकेशन को उठाएं और लिंक लिस्ट में इंसर्ट कर दें। आई रिपीट, गार्बेज कलेक्शन क्या है? गार्बेज कलेक्शन एक प्रोसीजर है, जितनी भी मेमोरी सेल्स यूज में नहीं हैं, अनयूज्ड हैं या हमने डिलीट कर दिए हुए हैं, जिनमें कोई भी वैलिड डेटा या कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा नहीं पड़ा हुआ, उन सेल्स को इकट्ठा करके एक लिस्ट बना देना। उस लिस्ट को कहते हैं अवेल लिस्ट, जिसकी फुल फॉर्म है अवेलेबल लिस्ट। दैट इज द नोड्स ऑफ दिस लिस्ट, दे आर अवेलेबल टू बी यूज्ड बिकॉज दे आर अनयूज्ड। ठीक है। Avail list is also known as list of available spaces or free spaces or free memory pool or free storage list. इसके कितने सारे names हैं। The process of garbage collection is invisible to the user or the programmer. हमें नहीं दिखता कि garbage collection हो रहा है, लेकिन CPU ये खुद कर लेता है। अब CPU ये कैसे करता है? Garbage collection takes place in 2 steps. Garbage collection करने के पीछे 2 steps होते हैं। Number 1, the computer's operating system traverse all the nodes in memory. कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मेमोरी के सारे नोड्स को ट्रावर्स करता है, एक एक करके मेमोरी के सारे नोड्स पर जाता है एंड देन कंबाइंस ऑल दोज नोड्स टुगेदर विच आर करंटली इन यूज। और रास्ते में जौन सी नोड्स उसको दिखती है ना मेमोरी सेल्स की, ये यूज में है, इनमें वेरिएबल स्टोर्ड है, इनमें वैल्यू स्टोर्ड है, ये यूज हो रहे हैं, उन सेल्स को इकट्ठा करता जाता है। और बचे कौन से? बचे कौन? वो जो अनयूज्ड है। तो बाद में क्या करता है? यूज सेल्स को तो उसने पहले स्टेप में इकट्ठा कर लिया, और जो बच गए फिर उनको इकट्ठा करके एक लिस्ट बना देता है। देन इट कलेक्ट्स ऑल द रिमेनिंग अनयूज्ड नोड्स एंड फॉर्म अ लिस्ट नोन एज अवेल लिस्ट। गार्बेज कलेक्शन टेक्स प्लेस अंडर 2 कंडीशंस। अब गार्बेज कलेक्शन क्यों होती है और कब होती है? पहला, व्हेन सीपीयू और कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज आइडल, दैट इज नॉट परफॉर्मिंग एनी टास्क। जब कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी नहीं कर रहा, हम कंप्यूटर पे कोई काम नहीं कर रहे, कंप्यूटर इज सिटिंग आइडल, पर ऑन है कंप्यूटर बट इट इज आइडल, तो उस टाइम पे गार्बेज कलेक्शन वो कर सकता है कंप्यूटर। या व्हेन ओनली फ्यू नोड्स आर लेफ्ट इन अवेल लिस्ट, या जो वो लिस्ट है ना अनयूज्ड नोड्स वाली, उसमें 2-4 नोड्स ही रह गई हैं, तो तब भी कंप्यूटर गार्बेज कलेक्शन करता है कि अवेल लिस्ट को मैं बड़ी कर दूं कि बहुत ज्यादा नोड्स किसी को चाहिए होंगी तो वहां से हम उठा लेंगे। ठीक है। आफ्टर गार्बेज कलेक्शन देयर इज अ नेक्स्ट टॉपिक, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ये सेम टॉपिक है जो हमने स्टैट्स में एंड क्यूज में भी डिस्कस किया है। ओवरफ्लो क्या होता है? ओवरफ्लो होता है कि जब हम अपने डेटा स्ट्रक्चर में कुछ ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर फुल है। ठीक है। और अंडरफ्लो क्या होता है? जब हम डेटा स्ट्रक्चर से कुछ डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन डेटा स्ट्रक्चर एम्प्टी है, तो कुछ डिलीट नहीं हो पाएगा, तो ये एरर कंडीशंस हैं। अब लिंक लिस्ट के केस में देखो, लिंक लिस्ट तो एक अनलिमिटेड लिस्ट है, जितने मर्जी नोड्स को लिंक लिस्ट में लगाई जाओ। लिंक लिस्ट तो कभी भरती नहीं है, लिंक लिस्ट की कैपेसिटी फिक्स नहीं है, जितनी मर्जी नोड्स अटैच करी जाओ लिंक लिस्ट में। तो लिंक लिस्ट के केस में ओवरफ्लो कब होगा? लिंक लिस्ट के केस में ओवरफ्लो तब होगा, अब ध्यान से सुनो, मेरी एक लिंक लिस्ट है, लेट अस सपोज लाइक जो मैंने अभी आपको समझाया था, लेट मी टेक दिस एग्जांपल। ये एग्जांपल अभी समझा था ना हमने। मेरे पास एक लिंक लिस्ट है, लेट मी इरेज द इररेलेवेंट डेटा। ओके, नाउ आई एम हैविंग दिस लिंक लिस्ट। इस लिंक लिस्ट में 4 नोड्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अब मुझे इस लिंक लिस्ट में एक नोड इंसर्ट करना है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर जो अवेल लिस्ट बनी थी ना गार्बेज कलेक्शन से जो तैयार हुई थी, जिसमें सारे अनयूज्ड नोड्स पड़े हुए थे, कंप्यूटर उनमें से एक नोड उठाएगा और लिंक लिस्ट में डाल देगा। फिर एक और नोड मैंने अपनी लिंक लिस्ट में ऐड करनी है, फिर से वो अवेल लिस्ट में से नोड उठाएगा और लिंक लिस्ट में ऐड कर देगा। यानी जब भी कोई नोड इंसर्ट होनी है स्टार्ट लिस्ट में, तो अवेल लिस्ट में से एक नोड पिक होती है, क्योंकि वो लिस्ट ऑफ अवेलेबल नोड्स हैं, वो नोड सारी फ्री नोड्स हैं, उनमें से कोई एक फ्री नोड पिक होती है और उसको हम यूज कर लेते हैं, अपनी लिस्ट में अटैच कर लेते हैं। ठीक है। तो ओवरफ्लो कब होगी लिंक लिस्ट में? लिंक लिस्ट तो अनलिमिटेड है, जितनी मर्जी नोड्स अटैच करी जाओ, तो लिंक लिस्ट कब फुल होती है? लिंक लिस्ट के केस में ओवरफ्लो तब होती है अगर हमने लिंक लिस्ट में इंसर्शन करनी है, कोई नोड इंसर्ट करनी है, लेकिन अवेल लिस्ट खाली है, अवेल लिस्ट में कोई नोड ही नहीं है जिसको हम उठा के इंसर्ट कर सकें। क्लियर? So overflow is an error condition which occurs when a new node is to be inserted in start linked list. It's a start linked list.
बट द अवेल लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, पर जहां से नोड उठानी थी अवेल लिस्ट से इसमें इंसर्ट करने के लिए वो लिस्ट एम्प्टी है, यानी अवेल नल है। एंड अंडरफ्लो कब होता है? अंडरफ्लो होता है, अंडरफ्लो इज एन एरर कंडीशन विच अकर्स व्हेन अ नोड इज टू बी डिलीटेड फ्रॉम द स्टार्ट लिंक लिस्ट। ये जो स्टार्ट लिंक लिस्ट है ये वाली, इसमें से हमने कोई नोड डिलीट करनी है, लेकिन स्टार्ट लिस्ट खाली है, स्टार्ट लिस्ट में कुछ यहाँ नल पड़ा हुआ है, स्टार्ट लिस्ट में कोई नोड नहीं है, तो डिलीशन के टाइम पे अंडरफ्लो की एरर आ जाएगी कि स्टार्ट में तो कोई नोड ही नहीं है, डिलीट किसको करना है। सो व्हेन अ नोड इज टू बी डिलीटेड फ्रॉम अ स्टार्ट लिंक लिस्ट बट स्टार्ट लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, दैट इज व्हेन स्टार्ट इक्वल्स टू नल। क्लियर? सो ओवरफ्लो होता है जब अवेल नल है, अंडरफ्लो होता है जब स्टार्ट नल है। 3 topics: garbage collection, overflow and underflow. These 3 topics should be kept in mind for understanding the algorithms of inserting a node in a linked list and algorithms for deleting a node in a linked list. ठीक है?